ترکی اور شام میں خوفناک زلزلہ، شہر اجڑ گئے، ہر طرف دل خراش مناظر۔ دونوں ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 3419، شام میں 1602 افراد لقمہ اجل، ہزاروں زخمی، سینکڑوں عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ زلزلے سے کمران، عثمانیہ، ولاتیہ دیار اور بکر سمیت 10 شہر زیادہ متاثر۔ 1939 کے بعد سب سے بڑی تباہی کا سامنا ہے۔ صدر طیب اردوان ملک میں 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ زلزلے کے ہولناک اور دل ہلا دینے والے مناظر نے روح زمیں کو اشکبار کر دیا۔ ترکیہ میں عمارت اچانک بچی کے پاس آ گری، بچی معجزاتی طور پر محفوظ، چیخوں کی صدائیں بلند۔ لاہور رپورٹنگ چھوڑ کر صحافی بچی کو ریسکیو کرنے دوڑ پڑا۔ اس دوران رپورٹر کے ساتھ کیمرہ مین نے بھی بھاگتے ہوئے سارے مناظر فلم بند کیے جو ٹی وی پر براہ راست نشر ہوئے۔ وفاقی کابینہ کا ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے پر اظہار افسوس، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد رنجیدہ ہے۔ آزمائش کے اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کی عوام کے ساتھ ہے۔ زلزلہ کی تباہی سے نپٹنے کے لیے پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم، کابینہ ارکان کا 1 ماہ کی تنخواہیں دینے کا اعلان۔ ترکیہ میں بدترین زلزلہ کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پاکستان پیش۔ اسلام آباد اور لاہور سے 2 پروازیں امدادی سامان لے کر ترکیہ لینڈ کر گئیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور دیگر اشیاء شامل، ریلیف اقدامات کے لیے تفصیلات جاری۔ ترکیہ اور شام میں زلزلہ، عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج کے 2 دستے ترکیہ روانہ۔ دستوں میں پاک فوج کے ریسکیو ٹیمیں شامل، آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اسٹاف اور دیگر عملہ بی ٹیم کا حصہ۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیم 30 بستروں کا موبائل استعمال کرے گی۔ ترکیہ اور شام میں بدترین زلزلہ، عالمی برادری کا اظہار یکجہتی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ متاثرین کی مدد کے لیے پرعزم، سعودی حکومت کا ترک صدر سے رابطہ۔ فرانس، یوکرین کی بھی امدادی سرگرمیوں کی مدد کی پیشکش۔ آذربائیجان، نیدرلینڈ اور رومانیہ کی ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مصروف۔ یورپی ممالک کی بھی اپنی امدادی ٹیموں کو تیاری کی ہدایت۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ میں نماز جنازہ ادا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اشفاق کیانی نے سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ سی ایس ٹی پرانا فوجی قبرستان میں پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شیخ رشید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد کے مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شیخ رشید کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کو سیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نااہلی کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 فروری کو سماعت کرے گا۔ عمران خان پر مبینہ بیٹی تہریان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر کرنے کا الزام ہے۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عمران خان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پی ٹی آئی وکلاء کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ توشہ خانہ کے کیس میں جب آپ کے سامنے یہ ساری بات ہے کہ فرد جرم نے عائد ہونا تھا تو آپ کتنی دیر چھپیں گے؟ یہ واحد آدمی ہے جس کو گرفتاری سے نہ جانے کیوں اتنا ڈر لگتا ہے اور اس پر اتنا خوف طاری ہوتا ہے۔ عمران خان ویڈیو لنک پر بیان ریکارڈ کرا دیتے تو فرد جرم عائد ہو جاتی۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو خوف کیوں؟ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتاری کے ڈر سے خواتین اور بچوں کے حصار سے چھپے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صرف ڈرامے کر رہا ہے، کسی مشکل وقت میں سامنے نہیں آئے۔ توشہ خانہ کیس، ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس۔
झूठे मुकदमात में पकड़ धकड़ और छापों का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पंजाब में धड़ाधड़ तबादले, मनपसंद अफराद को तैनात किया जा रहा है। पूरे सूबे में इंतकामी माहौल दिखाई दे रहा है। इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामा देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम नजर आ रहा है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। आइन कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो ये तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूँ। पिछले 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी है। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात कराए जाएं। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने एहसासे क्लियर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जेहलम से पहली गिरफ्तारी दूंगा, फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, और नहीं बना सकती। इमरान खान ने दावे किए कि मैंने फलाने को अंदर करवाया है, मैंने फलाने को अरेस्ट किया है, मैंने फलाने को पकड़ा है। अब उनको याद आया कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, मुझसे कोई और करवा रहा था। तो वो अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। मेरा मुशाहिदा ये है कि इस मुल्क में कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता। इमरान खान की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई। मुझे वजीर आजम सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, कोई और नहीं। चेयरमैन पीटीआई अपना बयानिया दुरुस्त कर ले। झूठे मुकदमात बनवाने के खिलाफ इस मुल्क में कोई भी करप्ट शख्स नहीं पकड़ा जाता। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। पंजाब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते केपी के इलेक्शन की अनाउंसमेंट आ जानी है, तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है, जो आपने मुल्क के साथ किया है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक नहीं, तारीख साज वक्त से गुजर रहा है। अगले हफ्ते में मुल्क की सिमत का तयन होने वाला है। उनको नजर आ रहा है पुराने निजाम के दिन खत्म हो रहे हैं। मुल्क को सिर्फ आइन और जमहूरियत की बना पर चलना है। कौम फैसला कर बैठी है, अब कोई रोक नहीं सकता। आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें, मैदान में आए, इलेक्शन की तैयारियां करें। असद उमर की मीडिया टॉक। ये नहीं हो सकता कि एक फर्द जो है वो बगैर वजह बताए असेंबली तोड़ दे, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो। आप वजह बताएं, कौन से ऐसे हालात थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपने तोड़ दी? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। और फिर ये हुक्म कौन दे रहा है? एक आदमी जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। मेरा जाती मौक़िफ़ तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज कियोस क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक ही बार होने चाहिए, बार बार इलेक्शन से इंतशार होगा। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, असम्बलियों को मुद्दत से पहले बगैर वजह तहलील किया गया। आइन ने कायदे ईवान को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दिया है। इमरान खान तो असम्बली नहीं तोड़ सकता। ऐसे हालात नहीं थे कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं। वज़राए आला को दबाव में लाकर असम्बलियाँ तोड़वाई गई। अब मुल्क की सूरत हाल मजीद इंतशार की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एपीसी में किसी जमात के शामिल ना हुए से मामला रुक नहीं सकता। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की साबिक हुकूमत पर तनकीद। निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू, कहा एपीसी में तमाम जमातों की शिरकत के लिए 2 दिन बढ़ाए हैं। ये कौमी मामला है, इस पर तमाम जमातों को मिलकर हल करना होगा। एपीसी से इत्तफाक राय के बाद हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का तमाशा सबने देखा। 15 जनवरी से पहले इलेक्शन मुलतवी करते रहे। पूरा इलेक्शन आरोज ने मैनेज किया हुआ था। इस तरह के इंतखाबात कराने में तो खर्चा ना कराएं, खुद ही बंदरबांट कर लें। अली सैदी की मीडिया टॉक।
कराची में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, जमात इस्लामी का भी नहीं। पीपल्स पार्टी अपने रवायती हलकों से जीती, इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमारी दोबारा गिनती की जायज़ दरख्वास्तें भी मुस्तरद की गई। जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करते हैं, हमारा भी किया जाए। दांतली की होती तो मतलूबा नशिस्तें हासिल करते। सूबाई वजीर सईद गनी। IMF और वजारत खजाना के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान ने तरक्याती बजट में कमी की शरह मान ली। बजट में 300 अरब रुपए कटौती। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मॉनिटरिंग का निज़ाम भी वाज़ेह किया जाएगा। प्लानिंग कमीशन का अलमिया। डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 76 पैसे इजाफे के बाद 276 रुपए 6 पैसे का हो गया। डॉलर्स की अफगानिस्तान स्मगलिंग पाकिस्तान के कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर की बड़ी वजह है। पाकिस्तान में स्मगल होने वाले डॉलर्स तालिबान के लिए लाइफ बन गए। स्मगलर्स और ताजर यौमिया 50 लाख डॉलर्स अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात। पेशावर खुदकुश हमलावर CTD ने सहूलतकारों के मालूमात देने पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में विकिपीडिया पर से पाबंदी हटा ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से विकिपीडिया को बहाल करने की हिदायत जारी। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट जारी। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश के पेशगोई। जुमेरात की रात और जुमा को बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल का खदशा है। हुकाम की वार्निंग। कराची में शूटिंग के दौरान इलाका वकीलों ने हिरामानी और डायरेक्टर पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक नाखुशगवार वाक़े के दौरान अदाकार और दीगर स्टाफ से बदतमीजी की गई, जिस पर 2 अफराद को हिरासत में लेकर वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। शाम में जल्जले से खतरनाक कैदियों की जेल तबाह। 20 दाइश जंगजू फरार होने में कामयाब। शामी फौज के तर्जुमान ने कहा कि दाइश कैदियों के फरार होने के वाक़े की तस्दीक कर रहे हैं। कैदियों को गिरफ्तार करके दोबारा जेल में डाला जाएगा। राखी सावंत ने शौहर आदिल दुरानी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय अदाकारा ने कहा कि आदिल ने अपनी मुबैना गर्लफ्रेंड तन्नू की वजह से मुझसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। राखी सावंत ने शौहर को कानून के टहरे में लाकर सजा दिलाने का खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। 13 फरवरी से आगाज। पिशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन समी कराची पहुंच गए। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर का भी ट्रेनिंग कैंप जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। और कौमी क्रिकेटर आसिफ अफरीदी पर 2 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई। PCB एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी लगाई गई। आसिफ अफरीदी पर फिक्सिंग की पेशकश को रिपोर्ट न करने के इल्जाम था।